everyone, this is Nalini and today we are going to study class 9th poem 9th, The Snake Trying. Okay, The Snake Trying, it was written by W.W.E. Ross. The poet wants to give a message in this poem that not all snakes are dangerous and harmful. जैसे कि as the name suggests, snake, ठीक है ना, snake जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है, we always considered it poisonous and harmful. But in this poem, he wants to say that, the poet wants to say that कि even snake जो है ना, he is also afraid from the person या afraid from somebody who is trying to chase him. Chase मतलब जो उसका पीछा कर रहा है. Okay, we'll study stanza wise. Okay, stanza 1. The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. How beautiful and graceful are his shapes. He glides through the water away from the stroke. Okay, in stanza 1, the poet wants to say that जो snake है, he is trying to escape the pursuing stick. मतलब कोई उसका stick लेकर उसको chase कर रहा है, ठीक है, and he wants to escape from that person. With sudden curvings of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. And poet कहते हैं कि he was moved, he was impressed by the graceful and beautiful movements of snake. वो कहते हैं उनकी उसकी जो सडन कर्विंग्स है थिन बॉडी के, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं. ही वॉन्ट्स टू अप्रिशिएट उनकी बॉडी मूवमेंट एंड नेचर को, कि किस तरीके से ये एनिमल बना है और कैसे वो ग्रेसफुली मूव करता है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. एंड वो कहते हैं कि वो ग्लाइड करता है, वो मूव कर जाता है वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. ठीक है, रिवर वाटर आती है, उनकी जो स्ट्रोक्स आती है, जो लहरें आती हैं, उनके साथ वो ग्लाइड करता हुआ, ठीक है, स्लोली स्लोली मूव करता हुआ उन्हीं के साथ चला जाता है. ओके, इन स्टैंजा 1 2 important things were discussed. एक, the first one is कि snake is trying to escape from somebody, and second, the poet was impressed by the beauty of the nature. Beauty of nature यानी nature की creation जो कि snake है. Stanza 2. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. And he wants to request everyone कि please let him go over the water into the reeds. Reeds जो word आया है, reeds means underwater plants होते हैं green color के, जिनकी thick stem होती है, ठीक है, पानी के अंदर होते हैं. तो वो कहते हैं कि वो request करते हैं everyone to please let him go and hide in the reeds. ठीक है, और वो भी कैसे, without hurt. मतलब people please don't hurt snake, क्योंकि वो अपने आप जा रहा है. Small and green, he is small, ठीक है, he is green in color. He is harmless even to children. Because वो baby snake है, green color का है, छोटा सा है, तो वो harmful नहीं है. वो आपसे डर रहा है, ठीक है, escape होने की कोशिश कर रहा है, तो वो even बच्चों के लिए भी harmless है. Okay, in stanza 2, the poet is requesting to please let the snake go away without any hurt. Stanza 3. Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब stanza 3 में the poet wants to say कि वो sand पे, रेत पे आराम से लेटा रहता है. and कब तक लेटा रहता है? when somebody noticed him or chased him with a stick. जैसे कोई उसे, किसी को कहीं पे दिख जाता है तो वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं. तो वो कहते हैं कि प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज वो वहां पर चुपचाप लेटा हुआ है. He vanishes in the ripples among the green slim reeds. And वो क्या करेगा? जैसे ही आप उसको देखोगे या उसको चेस करोगे, वो अचानक से डिसअपीयर हो जाएगा. रिपल्स मतलब मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर की मूवमेंट के साथ साथ चला जाएगा. एंड उसी ग्रीन स्लिम रीड्स में, अंडर वाटर प्लांट्स में जाकर वो छिप जाएगा. ओके, इन दिस पोएम द पोएट इज रिक्वेस्टिंग एवरीबडी कि स्नेक जो है, जो कि दिखता हार्मफुल है, बट उसको आप क्या करें, हर्ट ना करें, बिकॉज वो बहुत ही हार्मलेस क्रिएचर भी हो सकता है. ओके, कमिंग टू द फिगर्स ऑफ स्पीच,
ठीक है. पोएटिक डिवाइस, वैसे तो नो राइम स्कीम इज देयर, एज यू कैन से ट्राइंग, स्टिक, थिन, ब्यूटिफुल शेप्स, अवे, स्ट्रोक. कोई राइम स्कीम नहीं है, तो ये एक फ्री वर्स है. ठीक है. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो इसमें आ रही है, दैट इज इमेजरी. ठीक है. इमेजरी होता क्या है? इमेजरी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, कि जब आप किसी चीज को रीड करते हैं, यू सडनली मेक इमेजेस इन योर माइंड. ठीक है. तो ऐसे एक ये लाइन है, पढ़िए. टू एस्केप द परसुइंग स्टिक विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. ठीक है. ये लाइन रीड करते ही यू मतलब योर माइंड केम टू एन इमेजिनेशन कि वो कैसे भाग रहा होगा और क्या कर्विंग्स उसकी बॉडी की होंगी. एंड सेकेंड, ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. और रिवर वाटर कैसे आती है, लहरें आती हैं और उसके साथ वो ग्लाइड करता हुआ, मूव करता हुआ वो गायब हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस ऑल्सो. I hope you have understood the poem. Thank you.